डिस्कस करते हैं. ओके, सो obviously we have uncertainty principle, and that uncertainty principle is delta x into delta px should be greater than h by 4 pi, है ना, or h cut by 2, you can write this thing. So this is minimum uncertainty, but your uncertainty can be greater than h cut by 2. Now, and this is for the working process. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? Sometime what you can do, you can use the uncertainty principle and then you can find the energy of a particle. Okay, so let's try to go for to finding the using uncertainty principle. Let us try to figure out what is my energy of a system. So now from here, using uncertainty principle, delta x into delta px is approximately is equal to h cut. So this is my uncertainty principle for इन जनरल. अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में लेना चाहते हो तो, है ना, दिस इज गिवन इन फॉर्म ऑफ इनइक्विटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर if you are taking this thing in form of equation, then what you will do, delta x into delta px for in general all system, ये सारे सिस्टम के लिए आप लोगे, बट डेल्टा x into delta px is approximately is equal to h cut by 2 for harmonic oscillator. ये किसके लिए लेंगे हम? हार्मोनिक ऑसिलेटर. Why? इसके पीछे भी रीजन हो सकता है. रीजन क्या है? इफ यू विल, और दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल. ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है कि अगर आपसे कोई बोले कि somebody will ask you that using the uncertainty principle find the energy of a particle confined in box, using the uncertainty principle find the energy of a harmonic oscillator, using the uncertainty principle you can also find the energy for a hydrogen atom also. So all other cases you will go for delta x into delta px is equal to what? H cut. But for the harmonic oscillator, you can go for delta x into delta px is approximately equal to what? H cut by 2. यहाँ तक क्लियर है ये? है ना? इसका कोई रीजन मुझे जो लगता है दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक रीजन, बट इन जनरल मैंने देखा है कि हर एक बुक में इसी तरह से चीजों को अप्रोच किया गया. बट इफ आई गिव द डीप थॉट, देन लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इंटरेस्टिंग ये है कि एनर्जी को अगर आप देखोगे, एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज नथिंग बट px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. यही तो होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, है ना? yes, sir. एंड वेयर ओमेगा इज नथिंग बट व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Frequency. नाउ अगर आप थोड़ी देर के लिए m की वैल्यू को 1 पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू को भी 1 पुट कर दो, देन व्हाट इज योर एनर्जी? देन योर एनर्जी इज px square by 2 and x square by 2. So you can see your x and px are symmetric. You can change x to px and px to x, there is not any change. Yes, sir. है ना? So this is only system. This is only system where your x and your, if you will, और आगे जाके भी जब आप कैलकुलेट करोगे चीजों को, then you will find this type of symmetry here. So here you can easily see that if I am going to change x to px and px to x, the energy, the nature is not going to change. है ना? बाकी किसी भी सिस्टम में देखोगे तो x को अगर आप px से चेंज करते हो, the thing will be entirely different. है ना? Yes, sir. So why in general ये देखा गया है कि मिनिमम अनसर्टेनिटी जो है वो हम इसके लिए लेते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर. एंड ड्यू टू एसिमेट्री बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम, एसिमेट्री मींस दोनों की, आप दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, दोनों को एक दूसरे से चेंज नहीं कर सकते हो. सो व्हाई यू कैन ऑन अदर सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेंशियल ये ले लूं, सपोज आई एम टेकिंग पोटेंशियल एज kx, है ना, ये भी तो ले सकते हैं पोटेंशियल. सो क्या यहां पर आप चेंज कर सकते हो मोमेंटम को पोजीशन से? नहीं चेंज कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Plus kx, you cannot change x to px and px to x. But harmonic oscillator is so symmetric function that you can have
चेंज x टू px एंड px टू x, उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही एक ही जैसा इक्वेशन ऑफ मोशन देता है। मैं आपको और भी थोड़ा इंसाइट देता हूं, सिमेट्री को समझने की कोशिश करो। लेट अस गो फॉर दिस इंसाइट। सपोज आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? m x डबल डॉट Yes, इज sir. इक्वल टू व्हाट? Minus. kx माइनस kx, Yes. यही होता है ना? Yes, sir. x डबल डॉट इज इक्वल टू व्हाट? Minus minus kx. So this is your harmonic oscillator equation of motion. अगर आप, और x डॉट की वैल्यू क्या होगी? So अगर मैं इसे कुछ ऐसे लिखूं, m d अपॉन dt x डॉट इज इक्वल टू माइनस kx, ऐसे भी लिख सकते हैं ना? Yes, sir. So you can write this thing also, m d x dot upon dt is equal to minus kx. और अगर मैं दोनों तरफ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, देन व्हाट विल हैपन? बताओ क्या होगा? So d square x dot by dt. दोनों तरफ टाइम के साथ कर दूं तो क्या हो जाएगा? D square डी स्क्वायर x dot एक्स डॉट by अपॉन dt. dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स डॉट। Yes, sir. एंड लुक एट दिस थिंग आर सेम इक्वेशन ना? हाँ जी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यहां पर x डबल डॉट है, यू कैन राइट दिस थिंग, यहां पर आप लिख सकते हो m, ये देखो इन दोनों इक्वेशन को, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना? और यहां पर देख रहे हो m डी स्क्वायर एक्स डॉट अपॉन डी टी स्क्वायर इज माइनस के एक्स डॉट। सर ये तो ऊपर में एक x है और यहाँ पे खाली x डॉट है. एक्स डॉट, लेकिन इक्वेशन तो सेम है। एक्स डॉट को y पुट कर दो, इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन तो सेम आएगा ना? हाँ जी. हाँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. जनरल सॉल्यूशन तो दोनों का सेम आएगा। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी, यहां भी ए साइन ओमेगा टी एंड ए कॉस ओमेगा टी। आर यू गेटिंग Yes, माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. है ना? सो सर आप ये देख, हाँ बोलो। सर हार्मोनिक की इक्वेशन है ना? हाँ हर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पोजीशन और मोमेंटम में क्या सिमेट्री है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर, दिस इज ट्रू ओनली फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सिमेट्री समझने की कोशिश करो। सो व्हाई हार्मोनिक ऑसिलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम टू अंडरस्टैंड। देखो क्या बात कर रहे हैं, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर का तो क्या लिखोगे? m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लिख सकते हैं ना? यही तो लिखते हो। अब इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग डी अपॉन डी टी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं फिर से टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देन व्हाट विल हैपन? m डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स डॉट। अब ये आप देख रहे हो, ये दोनों चीज, दोनों इक्वेशन क्या है? सेम इक्वेशन है। जैसा x वेरी कर रहा है वैसा ही x डॉट भी वेरी कर रहा है, इजंट इट? मतलब x और x डॉट को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. इंटरचेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते क्या? Yes, भाई sir. यहां हाँ. पर मैं y मान लूं तो फिर से क्या होगा? सेम इक्वेशन आ जाएगा, सेम इक्वेशन आ जाएगा. है ना? और अगर आप बेसिकली डायमेंशन को हटा दो, m की वैल्यू भी 1 ले लो, k की वैल्यू भी 1 ले लो, तो दोनों में एक पोजीशन और मोमेंटम में कोई भी अंतर ही नहीं रहेगा, इजंट Yes, इट? x एक्सिस को आप y एक्सिस कर दो, y एक्सिस को x एक्सिस कर दो, देयर इज नॉट एनी चेंज, इजंट इट? Yes, sir. है ना? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो भाई मेरा ये मानना है कि दिस इज अ वेरी नाइस सिमेट्रिक सिस्टम, वेरी नाइस सिमेट्रिक सिस्टम है। सो इसके लिए जो एरर है वो मिनिमम आता है, दैट इज h कट बाई 2। आगे जाकर के आप जब देखोगे, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स देखोगे, सो इन अ क्वांटम मैकेनिक्स द हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन होगा वो गॉसियन आएगा ग्राउंड स्टेट के लिए, एंड उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जैक्टली गॉसियन आता है विद द सेम विड्थ एक्चुअली, ओके, विद द सेम विड्थ। तो वो आप आगे जाकर के देखोगे, अभी उसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सो व्हाई बेसिकली अगर मैं तुम्हें वन लाइन में बताना चाहूं, हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ सिस्टम व्हिच इज सिमेट्रिक इन x एंड px। सेम टाइप का दोनों का बिहेवियर है, जैसा पोजीशन का बिहेवियर है वैसा ही मोमेंटम का भी बिहेवियर है। बट अदर किसी भी सिस्टम का नाम ले लो तुम, ऐसा बिहेवियर
नहीं मिलेगा, है ना? सर पार्टिकल इन बॉक्स भी नहीं होगा नहीं, अगर पार्टिकल इन बॉक्स में भी लेकिन पोटेंशियल तो जीरो है, हाँ, उसमें वॉल भी में नहीं सर होगा। इनफिनिट दैट इज द सिंपलेस्ट सिस्टम, बट दैट इज नॉट सो सिंपल एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। एग्रीड और नॉट? हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्स मोमेंटम वेलोस, और अब अगर मोमेंटम को हटा दूं, मैं वेलोसिटी और पोजीशन की बात करूं, तो अगर जो प्रॉपर्टी एक्स डॉट वर्सेज एक्स की है, वही एग्जैक्टली प्रॉपर्टी एक्स डॉट और एक्स की भी हो जाएगी, है ना? यस सर। अगर m की वैल्यू 1 कर दूं, k की वैल्यू 1 कर दूं, देन इट इज एग्जैक्टली सेम थिंग, बट दूसरे में ऐसा नहीं होगा, है ना? सो Yes, sir. आई थिंक इट इज माई पर्सनल ओपिनियन कि इसके कारण इसको हम क्या लेते हैं, एच कट H cut बाई by 2. 2 लेने की कोशिश करते हैं। ओके Yes, sir. ओके, सो लेट अस ट्राई टू गो फॉर 2 प्रॉब्लम, और एक मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप उसे करके भेजोगे मुझे। सो let us go for 2 main problem. One is for the particle in box, and we will again try to, देखो आप जब भी हम कर क्या रहे हैं ये समझने की कोशिश करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर ट्राइंग टू एनालाइज अ सिस्टम विद अ डिफरेंट मेथड, है ना? पार्टिकल इन बॉक्स की एनर्जी हमने निकाला था ना, विद द हेल्प ऑफ डिब्रोगी हाइपोथेसिस, Yes, sir. निकाला था, है ना? हमने पार्टिकल इन बॉक्स की एनर्जी बोर समरफील्ड थ्योरी से भी निकाला था, याद है? Yes, sir. है ना, वहां पर उससे भी निकाला था। अब हम उसी पार्टिकल इन बॉक्स की एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकालते हैं, एंड व्हाट यू विल सी, एवरीथिंग विल बी मर्ज टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ मर्ज कर रहा है हर एक चीज, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको कि हमें समझना पड़ेगा, इजंट इट? भाई कैसे आप वेरीफाई करते हो कि ये जो हमारा सिस्टम का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो सही है या नहीं? आप 2-3 तरीके से उसको देखने की कोशिश करते हो, और ऑल आर डिफरेंट थिंग। पार्टिकल इन बॉक्स को हमने डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश की। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सी द पार्टिकल इन बॉक्स विथ हेल्प ऑफ बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना? और इसके थ्रू आप ये भी निकालने की कोशिश करते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है ना? एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाती है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इन एटम? So let us try to go for this. So what is particle in box? So particle in box is again same width, that is 0 to a. So we are using the delta x into delta px. किसके इक्वल हम यूज करें? एच कट के आसपास में यूज करते हैं, ठीक है, मिनिमम अनसर्टेनिटी। एंड व्हाट इज एनर्जी? दिस एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? px स्क्वायर अपॉन 2m. 2m। पार्टिकल का एनर्जी इसके अंदर यही रहेगा, px स्क्वायर अपॉन 2m। नाउ द एनर्जी कैन बी रिटन एज, जो हम px कह रहे हैं वो तो स्टैटिस्टिकली px नहीं होगा, इट कैन बी एनी वैल्यू, है ना? इट Yes, कैन sir. बी एनी वैल्यू। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिप्लेस दिस px टू डेल्टा px, and we will find which delta px will give the minimum energy. Are you getting my point? So वो एक ही पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ px होगा। सर वो px को क्यों हम लोग डेल्टा लिए? px को डेल्टा नहीं लिए, px तो आप तब लिखोगे ना जब आपकी मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। जी सर। हमें तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेना है, तो px की तो कई वैल्यू हो सकती जी सर। है ना? सो वी हैव जस्ट टेकन px एज अ डेल्टा px, and then after we will find which value of px of delta px will give the minimum value of energy. Are you getting my point? यस सर। वो तो पर्टिकुलर वैल्यू ही मिलेगा ना, डेल्टा पीएक्स की वैल्यू। डेल्टा पीएक्स का मतलब है इसके अंदर कई वैल्यू हो सकते हैं पीएक्स की। जैसे मतलब ये एनर्जी भी मैंने आपसे कहा था कि जो फेज कर्व हमारा जब फेज पॉइंट था, तब तो हम पीएक्स की वैल्यू प्रिसाइज ले रहे थे, यस जी या सर। नो? बट अब ये फेज पॉइंट थोड़ी है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। लास्ट क्लास में मैंने बात किया था, यस सर। है ना? px वर्सेज x, पहली बार मिला तो यहां मिल गया, दूसरी बार मिला तो यहां मिल गया। सो दिस विल बी समथिंग डेल्टा x इंटू डेल्टा px, इजंट इट? इसके अंदर Yes, sir. कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। सो वी आर जस्ट टेकिंग अ ब्रॉड पार्ट ले रहे हैं, ये पार्ट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो px स्क्वायर बाई 2
m. Now we can use this energy, है ना, ये एक्सप्रेशन को यूज करना है. बेसिकली मोमेंटम कैन बी एनी वैल्यू बट वी कैन सी द डेल्टा एक्स. सो इसको कैसे लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा एक्स होल स्क्वायर. यस, लिख सकते sir. हैं, है ना. अब डेल्टा एक्स एनर्जी को मिनिमम होने के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर मैक्सिमम. मैक्सिमम होनी चाहिए. सो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ए. ए, 0 to a तक. अगर हम पूरा का पूरा ले लें तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम हो जाएगा. वी कैन sir. से दैट माय पार्टिकल कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to a. एनीवेयर बिटवीन 0 to a. तो व्हाट इज डेल्टा एक्स? तो मैक्सिमम विड्थ तो ए ही हो सकता है ना in this case. Yes, sir. So in this case the maximum width is a. So you can write E is equal to h cut square 2m and this value is equal to what? A square. And now this is H को your, रिप्लेस कर दो, आ गया. हाँ? वो, है ना, x को रिप्लेस वही कर दिया ऐसे. ठीक है, क्लियर है ये? सर a स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर वो वाला एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे, वो जो पहले किया था हम लोगों ने. क्या आ रहा है? तो h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर वो आ रहा है. E इक्वल्स टू n, En इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर हाँ, बाई 8m कुछ स्क्वायर. भी आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तो आ रही है ना. जी सर. हाँ. So this is one particular value. So आप इससे कम एनर्जी नहीं मिल सकता है आपको. Are you getting my point? यस सर. भाई आपने क्या देखा था? आपने पार्टिकल इन बॉक्स में डिब्रोगी हाइपोथेसिस से देखा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी मिली थी मिनिमम, इससे कम एनर्जी नहीं मिल पा रही थी यस सर. जब हमारा फंडामेंटल मोड मिला था. रिमेंबर, यस सर. कितनी वैल्यू मिली थी आपको बताइए? h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर. m स्क्वायर, ऐसा ही तो मिला था आपको. यस सर. ये नंबर क्या हो रहा है दैट इज डिफरेंट इशू, बट यू आर 100% श्योर कि एक कोई तो फिक्स वैल्यू होगी जिससे एनर्जी नीचे नहीं जा सकती है. यस सर. है ना. क्लासिकली क्या हो सकता है? क्लासिकली यू कैन हैव h स्क्वायर अपॉन 16m स्क्वायर ऑल्सो. क्लासिकली h स्क्वायर अपॉन 32m स्क्वायर ऑल्सो. कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहां पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. बिकॉज अगर वो पॉसिबल होगा तो ये आपका जो वेव का जो डिब्रोगी वेवलेंथ का हाइपोथेसिस ही गड़बड़ हो जाएगा. रिमेंबर, आपको याद होगा हमने सेम प्रॉब्लम किया था और उसमें हमने px dx की वैल्यू निकाली थी. रिमेंबर, समरफील्ड. हाँ. समरफील्ड थ्योरी. वहां पर nh के थ्रू दिया था और वहां से भी एनर्जी निकाली थी. क्या आया था हमारा? h स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर. रिमेंबर दैट थिंग, है ना. यहां भी कुछ उसी तरह से आ रहा है वैल्यू. आप अगर डायमेंशन देख रहे हो तो लगभग ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन है, बट यस इट हैज पाई टर्म इज ऑल्सो देयर, है ना. यस सर. सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ थिंग. और यहां से भी आप कह सकते हो कि फ्रॉम द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द मिनिमम वैल्यू इज फिक्स. दिस इज अ बिग थिंग. भाई मिनिमम वैल्यू कैसे फिक्स हो सकती है? एंड दिस इज बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? 0 पॉइंट एनर्जी. इसे क्या कहते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी. 0 पॉइंट एनर्जी. मतलब 0 केल्विन में भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी. एग्जैक्टली अगर आप कुछ ना कुछ मतलब ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट. हाँ, उससे नीचे नहीं जा सकता है. नहीं जा सकता है. ठीक है. सो व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी? 0 पॉइंट एनर्जी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड दिस इज व्हेन योर पार्टिकल इज बाउंडेड ऑब्वियसली. ठीक है. व्हेन योर पार्टिकल इज बाउंडेड दैट पार्टिकल कैन नॉट गेट द लोअर वैल्यू देन द 0 पॉइंट एनर्जी वैल्यू. इससे नीचे एनर्जी नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी मिनिमम टू मिनिमम हो सकता है, बट 0 पॉइंट एनर्जी में एनर्जी मिनिमम टू मिनिमम नहीं हो सकता है. यहां पर मैं एप्सिलॉन एनर्जी नहीं ले सकता हूं एंड दैट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. आई कैन नॉट टेक दिस थिंग, है ना. आई हैव टू टेक मिनिमम एनर्जी h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर. और अगर मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी देखता हूं तो भी एक फिक्स वैल्यू मिलती है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑब्वियसली अलग अलग अप्रोच से थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, बट कंक्लूजन इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? 0 पॉइंट एनर्जी. आर यू पीपल एग्रीड अप टू दिस पॉइंट? यस सर. सारे लोग कन्विंस हो? यस सर. ओके.
So this is very important thing, and with now let's try to go for next. ये तो बहुत ही trivial है, very trivial, but next try to go for what? Harmonic oscillator. उसे solve करते हैं. उसमें आप basically minimum का means maximum minima का use कर सकते हैं. यहाँ हमें maximum minima का कोई भी use करने की जरूरत नहीं थी, because we know that the maximum value of delta x will be a. But let us go for the next problem, that is harmonic oscillator. और उसके through harmonic oscillator की energy हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं with the help of uncertainty principle, and let's try to figure it out. ठीक है? So let's go for a harmonic oscillator. Okay. So harmonic oscillator के लिए energy क्या हो जाएगी? What is your energy? That is your px square upon 2m plus half m omega square x square. So this is your harmonic oscillator. So if this is your harmonic oscillator, we have to use the uncertainty principle. What is uncertainty principle? Delta px into delta x. इसकी वैल्यू कितना लूं मैं? h cut by 2. H cut by 2. h cut by 2. यहाँ पर क्या लेंगे? h cut by 2. So what we can write? We can write this thing as E is equal to px को क्या लिखे मैं? Quantum mechanically, this is my classical energy. So quantum equivalent quantum mechanical energy or is by 2m plus half m. I don't know what is the precise value of momentum. So why I am writing delta px. Are you getting my point? यहां मैं ये जब लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि I know my precise value of momentum, that is px and that is x. But here I don't know what is my precise value of momentum. Are you getting my point? So why I am writing delta px and delta m omega square delta x whole square. So from here, what I can write? I can write my px is equal to h cut upon 2 delta x. लिख सकते हैं ना? So when you will write px is equal to h cut upon 2 delta x, then E is equal to h cut square upon ये क्या हो जाएगा? 8m delta x whole square plus half m omega square delta x whole square. Are you people happy? देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं. Correct. ठीक है सर. ठीक है ना? 8 क्यों आया? क्योंकि 2 का स्क्वायर इंटू 2 इज 8. नाउ अब ये डेल्टा एक्स की वो वैल्यू हमें चाहिए. डेल्टा एक्स की कई वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, है ना? बट व्हाट वी नीड दोज वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स फॉर दिस एनर्जी इज व्हाट? मिनिमम. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू जस्ट गो फॉर dE upon d delta x is equal to 0. And obviously the second order differentiation must be also d delta x square must be greater than 0, है ना? So this is condition of minima. You can check from here, but I will just easily calculate what is value of delta x. So let us calculate value of delta x. Differentiate करें इसे. So dE upon d delta x is equal to, what is this value? h cut square, this is 8m और यहां क्या हो जाएगा? -2 into delta x to the power cube. ठीक है ना? And this value is plus half m omega square 2 into delta x. Half m omega square into 2 into delta x. Clear है ये? Agreed? Everyone? Yes sir. Okay. Yes sir. चलो.
So and this value must be equal to what? 0. ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी? 0 के इक्विवेलेंट होगी. So when this value is 0, then you can easily calculate the value of delta x to the power 4. निकालने क्या? देख लेते हैं. So that is minus h cut square upon 4m delta x to the power 4 plus m omega square delta x must be equal to 0. So from here delta 3 होगा. क्या 3 होगा? तो नीचे. Sorry, this will be 3. Okay, Yes. thank you. So delta x to the power 4 is equal to, इसको इधर लेके चले जाएं, that value is h cut square upon 4m square omega square. And I am interested into delta x square. Why I am interested into delta x square? Because here is delta x square and here is delta x square, isn't it? So Yes, delta x निकाल के क्या फायदा होगा? Delta x square ही निकाल लेते हैं. Yes? So Yes. this value is h cut square, or this value is basically h cut upon 2m omega. So now you can put this value delta x here, and now you can get value of energy. So just try to do with yourself. जरा देखो क्या आता है. So what is value of energy? क्या आ रहा है? पुट कीजिए. E is equal to h cut square upon 8m, and 1 upon delta x square is equal to what? 2m omega upon h cut plus सेकंड वाले को लिखोगे तो क्या होगा? That value is equal to half m omega square. डेल्टा x की जगह पर क्या लिखे? सर मेरा h ओमेगा by 2 आ रहा है. Very good. 2m omega. So this is nothing but h cut omega by 4 plus h cut omega by 4, and this value is equal to h cut omega by 2, which is exactly same value. आप देखोगे जब हम क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करेंगे, we will get exactly same value h cut omega by 2. Obviously जो बोर समरफील्ड ने कैलकुलेट किया था, उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था? मिनिमम वैल्यू h cut omega, है ना? Yes, sir. Remember, he calculated Yes, h sir. cut omega. So don't worry about the number value. Number value can be adjusted, but thing is that each and everything can be have same conclusion. And what is that conclusion? That in a harmonic oscillator, and what is harmonic oscillator? Harmonic oscillator is just a parabolic potential, and this is basically Vx versus x. So what you can see? You can see the minimum value of energy is fixed either from the basically Bohr-Sommerfeld theory or your basically a uncertainty principle. Minimum value is fixed, isn't it? Yes, sir. And you cannot go beyond this particular value. And again, you can see there is existence of what? 0 point energy. Yes. So इस तरह के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो आप उसे प्लीज कैलकुलेट करोगे. देखो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि यूजिंग बोर-समरफील्ड थ्योरी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज दिस वन, यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज दिस वन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो ये इस तरह की चीजों को आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. ओके, सो टेक अ होमवर्क and just try to give me this solution for a hydrogen atom. Hydrogen atom for the ground state. So for the ground state of hydrogen atom, we are not taking the centrifugal term. कोई भी centrifugal term नहीं लेंगे. What we will do, we will just go for energy, and this energy is basically E is equal to PR square upon 2m. And what is potential energy? Is the Coulombic potential, है ना? E square by 4 pi epsilon naught r. Okay, so you will use the uncertainty principle. Delta r into delta pr is approximately is equal to h cut, and from using this particular uncertainty principle
calculate the value of hydrogen atom and you will surprise what will be delta R. पहले delta R निकालने की कोशिश करो तो फिर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. Everyone is comfortable? सर मिनिमम एनर्जी निकालनी है ना? Minimum energy, obviously you will always calculate minimum energy. ठीक है, find the minimum value of energy. ठीक है, find minimum value of energy. ठीक है, and also you can calculate one particular thing. जैसे हमने अभी पार्टिकल इन बॉक्स के लिए निकाला ना, what is this thing? h cat square upon 8 ma square निकाला. Yes, energy, minimum energy सर h square by 2m square निकाला सर. 2 ma square निकाला. Okay, don't हाँ. worry. So we have just calculated 2 ma square. Now अगर मैं न्यूक्लियस की पोटेंशियल को ऐसा समझता हूं विद अ हार्ड पोटेंशियल, ओके, देन व्हाट विल बी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? किसके ऑर्डर में होता है? 10 raised to minus 15. 15, 10 to the power minus Wonderful. 15 meter. Okay, so you will take A is equal to 10 to the power minus 15 meter and take mass is equal to mass of electron. What is mass of electron? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Minus 31 kg, है ना? So take mass of electron and take A is the radius of particularly a nucleus. Try to get this energy. Calculate karo. What will be energy? You will get, this will be in term of mega electron volt. Okay. So if energy will be in term of mega electron volt, that means electron cannot be in nucleus because nucleus, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, isn't it? Yes, sir. You Yes, can just do this. आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? So this is again one particular problem. ठीक है, लिखो what is problem? Using delta x into delta px is approximately is equal to h cut. Prove that electron cannot be exist inside the nucleus. Same आप बॉक्स का ले लोगे ये, you can assume that nucleus is just like a particle in box in a very simple way, but obviously इसकी चीजें different होती है, but just a raw calculation के लिए you can assume this is just a box and this is, and then you can go for this one. ठीक है? Yes, sir. So this is from my side of this particular topic of modern physics, and now you can do practice, और जब भी आपको जरूरत पड़े you can just ask for the doubt classes. ठीक है? Okay, sir. Okay. So just go and do practice. सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए. ठीक है? जी सर. Okay. There are lot of questions in your booklet. पहले previous year को कीजिए, फिर worksheet कीजिए, and then if you want to go, you can also go for tutorials also. अगर आपके पास टाइम है तो. ठीक है? क्या नहीं समझ में आया? बताओ.